آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ حج 2023 کے لیے قرعہ اندازی کے ذریعے عازمین کا انتخاب کیا گیا۔ اورنگ آباد کے 1048 افراد فریضہ حج ادائیگی کے لیے منتخب کیے گئے۔ واضح ہے کہ حج 2023 کے لیے مہاراشٹر سے سینٹرل حج کمیٹی کو 24,144 عازمین کی درخواستیں موصول ہوئی ہے، جن میں اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ یعنی مرحلہ سے 3,128 افراد نے درخواستیں داخل کی ہیں۔ قرعہ اندازی کے لیے عازمین کا انتخاب کیا گیا۔ ضلع اورنگ آباد کے 2,500 درخواست گزاروں میں سے 1,048 خوش نصیب افراد کا فریضہ حج کے لیے انتخاب عمل میں آیا ہے۔ جن افراد کا سلیکشن ہوا ہے انہیں متعلقہ محکمے کی جانب سے اطلاع بھی دی جا رہی ہے اور منتخبہ عازمین کی فہرست جاری کی جا چکی ہے، جو خدمات حجاج کمیٹی کے دفتر میں بھی دستیاب ہے، لہٰذا درخواست گزار اس دفتر پر پہنچ کر اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ ہی کی طرح اس مرتبہ بھی عازمین کی تربیت کے لیے خدمات حجاج کمیٹی کی جانب سے 29 اور 30 اپریل کو جامع مسجد کے احاطے میں موجود سعید ہال میں تربیتی نشست رکھی جا رہی ہے۔ ریاست بھر میں کورونا پھر سے سر اٹھانے لگا ہے، لہٰذا تمام اضلاع کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کووڈ ٹاسک فورس کے ہنگامی اجلاس میں تمام تر مشینری کو مستعد رکھنے کے احکام دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں شعبہ صحت عامہ کے سیکریٹری کی صدارت میں ایک میٹنگ منعقد کر کے ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، معاون ڈائریکٹر، اسی طرح ریاستی ٹاسک فورس و ممبران کو اطلاع کر دی گئی ہے۔ اس اجلاس میں کووڈ کی مناسبت سے موک ڈرل، آزمائشی مشق لیے جانے اور اسپتال و مراکز کو تیار رکھنے، دواؤں کے انتظامات اور دیگر انتظامات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ کورونا احتیاطی و تدارکی تدابیر کی جانکاریوں کے آموختے اور 10 و 11 اپریل کو تمام اداروں میں کورونا بچاؤ تدابیر کی موک ڈرل لینے کی ہدایت اس میٹنگ میں دی گئی۔ اسی طرح ہر ضلع میں کووڈ کنٹرول شعبہ قائم کرنے کی ہدایت کے ساتھ ساتھ عوام و شہریان سے بھی تمام تر احتیاط برتنے اور مرض کے آثار دکھائی دینے پر فوری ٹیسٹ کروانے سمیت اہم ترین ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مہا وکاس آگھاڑی میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے 2 اپریل کو شہر میں موجود مرحوم سنسکرتک منڈل کے میدان پر وجرمٹ نامی سبھا منعقد کی جا رہی ہے، جس کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے NCP، کانگریس اور شیو سینا ادھو گروپ کے اعلیٰ قائدین آج وہاں پہنچے اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ واضح ہے کہ ملک اور ریاست کے موجودہ سیاسی حالات میں عوام کا اعتماد حاصل کرنے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے غرض سے مہا وکاس آگھاڑی میں شامل شیو سینا ادھو گروپ، راشٹروادی کانگریس اور انڈین نیشنل کانگریس کی جانب سے شہر میں 2 اپریل بروز اتوار مرحوم سنسکرتک منڈل کے میدان پر وجرمٹ سبھا یعنی فولادی مٹھی اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں تینوں ہی سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ قائدین کی شرکت متوقع ہے، جو عوام سے بات کریں گے۔ لہٰذا NCP کے شہر صدر خواجہ شرف الدین ملا، کانگریس کے شہر صدر یوسف شیخ اور شیو سینا ادھو گروپ کے سینئر قائد چندرکانت کھیرے و دیگر عہدیداران نے اجلاس کے لیے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ تو اس میں یہ بات ضرور ہے کہ MIM کے کارن سے دنگے فساد ہو رہے ہیں کہ BJP ہندو اور مسلمانوں میں جھگڑا لگا رہی ہے، دلت سورن میں جھگڑا لگا رہی ہے۔ یہ تو اوپنلی دکھ رہا ہے نا، وہ ان کی یہ سدھ کرنے کے لیے، اور یہ مہا وکاس آگھاڑی 2.5 سال میں ماننیہ مکھیہ منتری ادھو جی سے کتنی تکلیف دی انہوں نے، کچھ تو بھی آروپ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن ادھو صاحب ڈرے کیا نہیں ڈرے۔ 15 دن پہلے جب ایک سر فرے نے جو ایک کمنٹ کیا تھا، ہم نے CP صاحب کو جا کر وہاں پر بولے تھے کہ یہ ایسے لوگوں کو کہ آج اگر یہ ایسے لوگوں کو ان کے اوپر گناہ داخل کرو اور ان کو جلدی سے جلدی جیل پہ ڈالو تو یہ شہر شانت رہیں گے، ہم نے جا کر بول کے آئے تھے۔ اسی کے بعد میں بھی ایک سر فرا روز شہر کے اندر موٹر سائیکل بلٹ پہ جو گھومتا تھا، ہم نے معلومات کی ہے وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس نے بھیجا تھا، اس کی بھی چوکسی ہونا چاہیے۔ کل ہم اجیت دادا کو یہ پورا جو شہر میں گھڑا، ہم اس کی پوری جانکاری دینے والے اور CP صاحب کو بھی ہم وہاں پہ بلائیں گے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی جینتی کی مناسبت سے ملند کالج ناگسین 1 میں سابقہ و موجودہ طلباء کی جانب سے ناگسین فیسٹیول منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا افتتاح گزشتہ شام عمل میں آیا۔
ये तकरीब मद्रास हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस के चंद्रू की सदारत में मुनक़िद की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में गिरां क़दर खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें विशुद्धानंद बोधी महाथेरो, डॉक्टर वाल्मीकि सरोदे, डॉक्टर शंकर अंबुरे, डॉक्टर उमाकांत राठौड़, डॉक्टर तुषार मोरे और दीगर शामिल हैं। इस मौके पर जस्टिस चंद्रू ने हाज़रीन से खिताब किया, जिन्हें सुनने के लिए हज़ारों की तादाद में शहरियान जमा थे। Extra footwear, making the government to pay money. When they come from home, they leave the slippers in their own office room and then come barefoot all the time. Does it mean that the justice system, does it mean the judiciary, does it mean the courthouse is a place of worship, is a place where people come to worship? Now if judges do think in these lines, you may understand what kind of a justice they may render in courts. बिड़किन के करीबी मज़ाफ़ात में तेज़-ए-तुंद आंधियों के झक्कड़ चले, जिसकी वजह से घरों के पतरे उड़ गए और साकिनान का शदीद नुकसान हुआ। बिड़किन तालुका पैठन के करीबी मज़ाफ़ात जाम्भली की ग्राम पंचायत हदूद में आने वाले जाम्भली वाड़ी में अचानक तेज़ आंधियों के बवंडर चले और इस तूफ़ानी हवाओं में वाड़ी के साकिनान में से कमोबेश 30 घरों की छतों के पतरे उड़ गए, जबकि 7 घरों में रखे सामान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। इन तूफ़ानी हवाओं में फलो बागात की फसलें और पैदावार को भी नुकसान पहुंचा है। दोपहर के वक्त अचानक आई आंधियों के झक्कड़ों के सबब बाड़ी बस्ती के साकिनान बदहाल हो गए हैं और जब जाम्भली गांव में ये खबर हुई तो गांव के साकिनान बाड़ी की तरफ दौड़े और नुकसानात के पंचनामों व नुकसान भरपाई का फौरी मुतालबा भी दाग दिया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से रिसर्च स्टूडेंट्स को दी जाने वाली फेलोशिप की दरख्वास्तदही की तारीख़ में 10 दिनों का इजाफ़ा किया जाए, ये मुतालबा कांग्रेस पार्टी के एससी सेल के शहर सदर डॉक्टर अरुण शिरसाट की रहनुमाई में एक वक्त गुज़िश्ता रोज़ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पहुंचा और असिस्टेंट कमिश्नर वाबले से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया और मुतालबा किया कि रिसर्च स्कॉलर्स को फेलोशिप हासिल करने के लिए दरख्वास्तदही की मियाद में मज़ीद 10 दिनों का इजाफ़ा किया जाए, जिसे कबूल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि किसी भी स्टूडेंट को वापस नहीं लौटाया जाएगा, बल्कि सभी को फेलोशिप दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस मौके पर प्रोफेसर शिलवंत गोप नारायण, प्रोफेसर सोनाजी गवई, दीपक पाइकराव, एडवोकेट राजेश नरोड़े, राहुल कामले और रिसर्च स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान का पहला अशरा जारी है और बंदगान तौहीद इबादतों में मसरूफ़ हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखते हैं। ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात अजंटा की भी एक 6 साला अनहा नामी बच्ची ने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा। नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक जारी है। इस माह के 3 मुख्तलिफ अशरों में से पहला अशरा अशरे रहमत कहलाता है और बिलाशुबा बंदगान तौहीद इस अशरे की रहमतों के हुसूल के लिए रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा 5 वक्त की नमाज़ों की अदायगी और नमाज तरावी और दीगर इबादात में लगे हुए हैं। रमज़ान के इस पाकीज़ा व पुरनूर माहौल को देख कर हमारे छोटे छोटे नौनहालों में भी रोज़ा रखने की तमन्ना व ख्वाहिश जाग उठती है और उनकी तरगीब व हौसले के मकसद से छोटे बच्चों को भी रोज़े रखवाए जाते हैं और हर साल लाखों नन्हे रोज़ेदार रोज़े रखते हैं। ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात अजंता की साकिन अनहा शेख फ़ेरोज़ उर्फ गन्नू ने महज 6 साल की कमसिनी में अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा और दिन भर की भूख प्यास की शिद्दत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और रहमत के लिए क़ुर्बान किया। इसी तरह शहर औरंगाबाद के इलाक़े कटकट गेट के साकिन शेख अफ़ान शेख रियाज ने 7 साल की उम्र में रोज़े रखने की शुरुआत की। इनके पहले रोज़े पर इन्हें अजीज़ व क़रीब ने भरपूर मुबारकबाद दी। परभनी बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर की मज़म्मत में परभनी के सनतकारों ने काम बंद एहतजाज किया। डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से शहर के सनती इलाक़े में क़ायम सभी 136 सनतें बेमुद्दत बंद कर दी गई हैं। एहतजाजी सनतकारों का कहना है कि जब तक म्यूनसिपल कमिश्नर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाएगी उनका एहतजाज जारी रहेगा। इस तरह का इंतबाह मज़कूरा सोसायटी के प्रमोद वाकोड करने दिया है। महापालिका आम्हाला पाणी देत नाही, रस्ते देत नाही, स्वच्छतेचे कुठले विषय करत नाही आणि त्यांनी टॅक्समध्ये सुद्धा रिकाम्या प्लॉटला 14 लाख रुपये, ज्याचं बांधकाम आहे त्याला 5 लाख रुपये,
आणि ज्याचं काहीच नाही अशालाही 25-25 लाख रुपये अशा पद्धतीचं त्यांनी चुकीचे सगळे असेसमेंट आणि चुकीचे सगळे टॅक्स लावलेला होता. याबाबत संघटनेच्या वतीनं आम्ही माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाकडे आम्ही अपील दाखल केलेलं आहे. त्याची सोमवारी उद्या पुन्हा सुनावणी आहे. आणि आपल्या इथं एस टी महामंडळाच्या याला सील लावलं होतं महापालिकेवाल्यांनी. तर एस टी महामंडळाचं हे एस टी महामंडळाने आपल्या हायकोर्टामध्ये अपील केलं होतं. त्या अपीलमध्ये हायकोर्टाने स्पष्ट डायरेक्शन असे दिलेत की मनपाच्या कायद्यामध्ये सील करण्याचा ॲक्टच नाही आहे. म्हणजे मनपा प्रशासनाला कुठल्याही म्हणजे मग MIDC असो की अजून एखाद्याचं घर असो किंवा शहरामधला उद्योग असो, टॅक्सबाबत किंवा वसुलीबाबत त्यांना सील करण्याचा अधिकार नहीं है. आणि असं असताना सुद्धा त्यांनी न्यायालयाचा अपमान केला. रेल से बगैर टिकट सफ़र करने वालों पर कार्रवाइयां करते हुए माली साल 2022-23 में रेलवे इंतज़ामिया ने करोड़ों रुपयों का जुर्माना वसूल किया है. नांदेड़ डिवीज़न ने बजरिए ट्रेन बगैर टिकट सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर काबू पाने के लिए अपने अफसरान के ज़रिए 75 खुसूसी टिकट जांच मुहिमात का इनेकाद किया और इस साल भर की अपनी मज़कूरा कार्रवाइयों में 1,73,000 केसेस में कमोबेश 9.5 करोड़ रुपयों का जुर्माना वसूला है. नांदेड़ डिवीज़न में नई रुजू हुई डिवीज़नल मैनेजर नीति सरकार ने टिकट जांच के अफसरान व अमलों की बेहतरीन कार्रवाइयों की सताइश की है और मुसाफिरों से बिना टिकट सफ़र और जुर्माने से बचने और रेलवे से ताउन करने की अपील की है. बिड़किन के सरकारी अस्पताल में नाक़िस वाटर प्यूरीफायर से मुताल्लिक़ हमने खबर दिखाई थी, जिसका असर हुआ और मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने यहाँ का वाटर प्यूरीफायर फौरी तौर पर तब्दील कर दिया. वाज़ेह है कि बिड़किन तालुका पैठन का एक बड़ा गांव है और इसके अतराफ अकनाफ के कई मुआज़ियात इस गांव से मुल्हिक़ हैं. यहाँ कायम देही अस्पताल में इन गाँव व देहातों के मरीज़ आते हैं. ताहम यहाँ अस्पताल में नस्ब करदा पीने के पानी का वाटर प्यूरीफायर ख़राब हो जाने के सबब अस्पताल के मरीज़ों को पीने के पानी के लिए शदीद अज़ियतों का सामना है और उन्हें बिस्लरी के पानी की बोतलें ख़रीद कर पीनी पड़ रही है. जब ये खबर हमने MCN पर दिखाई और अवामी परेशानी के मंजर बताए और यहाँ पानी का नज़्म करने की जानिब अस्पताल इंतज़ामिया की तवज्जो मबज़ूल करवाई तो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया और मेडिकल सुपरिटेंडेंट हड़बड़ा कर ख्वाब गफलत से जाग गया और फौरी तौर पर प्यूरीफायर दुरुस्त करवा कर अस्पताल का पानी का नज़्म बहाल करवाया, जिस पर अस्पताल के मरीज़ों व साकिनान ने MCN का शुक्रिया अदा किया. बाज़ार सवंगी के राइजिंग स्टार स्कूल में सालाना गैदरिंग मुनक़िद की गई, जहां स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स पेश किए. गुज़िश्ता जुमेरात को मुनक़िदा इस प्रोग्राम की सदारत गाँव के सरपंच अप्पा राव नलावड़े ने की. इस गैदरिंग के मौके पर तलबा को तालीम के साथ साथ दीगर सलाहियतों को भी फ़रोग़ मिले तो मुस्तक़बिल में अपनी हमजहत सलाहियतों को ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में बरोए कार ला सकते हैं. इस तरह के ज़रीन ख़यालात का इजहार इस तकरीब में पंचायत समिति के साबिक़ नायब सभापति दिनेश अंभोरे ने किया. प्रोग्राम में तलबा ने गणेश वंदना, भक्ति व देश भक्ति गीत पेश किए और मेहमानों गाँव के साकिनान से दाद वसूल की. तलबा ने इस गैदरिंग में खूब जश्न मनाया और जोश व खरोश से तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जबकि स्कूल के तमाम असातिज़ा व दीगर अमले ने गैदरिंग की कामयाबी के लिए मेहनत की और तलबा की बेहतरीन रहनुमाई की. माजूर व अपाहज स्कूली तलबा की तिब्बी जांच के लिए फुलंबरी के देही अस्पताल में कैंप रखा गया. 29 मार्च को मुनक़िदा इस कैंप का इफ्तिताह मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अभिजीत खंदारे व डॉक्टर आनंद घुले के हाथों किया गया. इस मौके पर शोबे तालीम के निगरान एक्सटेंशन ऑफिसर बाबूराव गाड़ेकर, कौमी सेहत अतफ़ाल के प्रोग्रामिंग ऑफिसर और दीगर मुलाजमीन, इसी तरह समग्र शिक्षा अभियान गढ़ साधन केंद्र फुलंबरी के भी तमाम मुलाजमीन कैंप की तकरीब में मौजूद थे. इस कैंप में कमोबेश 88 स्कूली माजूर तलबा की सेहत की जांच की गई और कई माजूर तलबा की आगे की मेडिकल सहूलियात के लिए तोसी की गई. गढ़ साधन मरकज़ फुलंबरी की जानिब से इन तलबा के लिए खाने का भी नज़्म किया गया था. इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए BT सालों के ने अनथक मेहनत की. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.